So this is third revision class for class 9 science. Already concept of atomic number, atomic mass, real atomic mass, relative atomic mass has been given, and concept of what valence is also given, how to draw the electronic configuration. From there, how we can find whether it is metal or non-metal. So again I repeat, metal means the element which donate electron. They are called what? Metals. And the element who can gain electron, who can share electron, who does not make bonding, they are what? Generally non-metal. Okay, and mole concept has been given. So again I repeat one line, that is relative atomic mass or relative molecular mass. If it is atom, then atomic mass. If it is molecule, then molecular mass. This means proton plus neutron in gram. Okay? So for example, we have oxygen atom. For example, we have oxygen atom. So we have to find atomic mass. Atomic mass. So in oxygen, the number of proton is 8, number of neutron is also 8. So here proton plus neutron is 16. So oxygen atom, the relative atomic mass is 16 gram. Because this is atom, so it is relative atomic mass. Suppose oxygen molecule, generally if you are told that oxygen gas. So oxygen gas means that is O2. जनरली ऑक्सीजन गैस O2 फॉर्म में होता है, मोलिकुलर फॉर्म में होता है. ओके, सो O2 गैस मीन्स इट इज मोलिक्यूल, ऑक्सीजन मोलिक्यूल, and this molecule is made by 2 atoms. So the number of proton is 16. Why it is 16? 2 atoms is there. 8 plus 8, 16. And the number of neutron is also 16. So here the relative molecular mass is 32 gram. Now it is molecule, so relative atomic mass is 32 gram. So already we know that in relative atomic mass or relative molecular mass we have 6.02 into 10 to the power 23 atom or molecule. If it is atom, then the number of atom. If it is molecule, then number of molecule. This is fixed and calculation is done in last class. Last video. Okay, again and again I would like to repeat the concept. The reason behind it is that in future without this concept you cannot do better in science stream. Okay, so try to understand, try to give time, try to learn. और नॉलेज का तो फीलिंग होना है. फीलिंग जब तक नहीं आएगा तो आपको नहीं होगा. अब दिल से इसको ट्राई करो, क्योंकि ये रियल है, दिस रियल. Okay, and it is also known as 1 mole. दिमाग में रखना, एक मोल का मतलब है जो नंबर है that is 6.02 into 10 to the power 23. This is a big number. Okay, it's a number. So अभी देखो कि कोई भी है, जैसे मान लो कि एमोनिया है, NH3. This is called ammonia. NH3 is a molecule, not atom. This is made by 4 atom. नाइट्रोजन एटम 1 है, हाइड्रोजन एटम 3 है. This is called what? Molecule. So इसका रिलेटिव मास कितना होगा? अब नाइट्रोजन एटम का रिलेटिव मास कितना होता है? 14, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7. हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 बट 3 हाइड्रोजन है, 1 into 3. So रिलेटिव मास कितना है? 17 ग्राम. तो 17 ग्राम एमोनिया, 17 ग्राम में एमोनिया का मोलिक्यूल का नंबर कितना होगा? 6.02 into 10 to the power 23. This number of molecule, not atom. And इस 17 ग्राम में कितना मोल होगा? That is 1 मोल. इतना आपको निकालना आना चाहिए. ठीक है, एक तो हो गया कि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके NH3 को फॉर्म करता है. ये भी आपको कॉन्सेप्ट जानना है. नाइट्रोजन का वैलेंस 3 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 नाइट्रोजन कैन कीप 3 hydrogen. That is one concept.
अभी देखो जैसे ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, इसमें आपका रिलेटिव मास कितना होगा 16 ग्राम। इसका मतलब 16 ग्राम में ऑक्सीजन का रियल में असली में एटम का नंबर कितना है 6.02 into 10 to the power 23 एटम। हियर नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 मोल, इज इक्वल टू व्हाट 1 मोल, 1 मोल। ओके, नेक्स्ट अगर ऑक्सीजन मोलिक्यूल है O2 मोलिक्यूल, दैट रिलेटिव मास कितना है 32 ग्राम। देखो ये चेंज होगा, नाउ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल नॉट एटम, नंबर ऑफ मोलिक्यूल विल बी सेम 6.02 into 10 to the power 23 molecule, not atom, is equal to 1 mole oxygen molecule. Similarly, we have carbon dioxide, suppose CO2, CO2 relative mass कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, ऑक्सीजन O2 है, that's why 32, it means 44 ग्राम। इसका मतलब 44 ग्राम CO2 में CO2 का मोलिक्यूल का नंबर कितना है, that is 6.02 into 10 to the power 23, which is also known as 1 mole. सो मेनली मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर अभी भी किसी का डाउट है, इसको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, अभी भी डाउट है देन यू कैन कॉल मी, लेकिन ट्राई टू लर्न। इसका कॉन्सेप्ट का बिना आपको आगे बहुत दिक्कत होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे 11 क्लास में जो भी स्टूडेंट आता है उसको बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि इससे बेसिक नॉलेज होता ही नहीं है। ओके, सो अगेन आई रिपीट, आपका एटम आपको याद करना है अप टू 20, अप टू कैल्शियम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हम लोग एटॉमिक मास जो बोलते हैं ना, दैट इज रिलेटिव नॉट रियल। क्यों होता है तो वो सब बता चुका हूँ मैंने, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना है 30 ग्राम, दैट इज रिलेटिव। उसमें असल में 1 मोल है, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो मैंने बोल चुका हूँ, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास आपको निकालना आना चाहिए। फिर उसके बाद एटम से क्या बनता है, मोलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो मोलिकुलर मास, जैसे मान लो कि मीथेन है CH4, दिस मोलिक्यूल, तो मोलिकुलर मास कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 है, 4 हाइड्रोजन है, तो 12 प्लस 4 दैट इज 16। तो इसका रिलेटिव मास एटॉमिक मास का मोलिकुलर मास कितना है, दैट इज 16 ग्राम। ओके, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए एटम का, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन देख के अब डोनेट होगा ना गेन होगा वो पता करना आना चाहिए। अगर डोनेट होता है तो मेटल होता है, गेन शेयर होने से क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है, दैट इज आयोनिक बॉन्डिंग। ओके, एंड किसी भी मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास निकल आना चाहिए। मोलिकुलर मास बेसिकली एटॉमिक मास से बनता है। सो बट अगेन आई रिपीट, मोलिकुलर मास मीन्स रिलेटिव मोलिकुलर मास, नॉट ओरिजिनल। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेटिव मोलिकुलर मास कितना है 44 ग्राम, दैट इज नॉट ओरिजिनल। उसमें असली में क्या है रिलेटिव, मतलब हम लोग 44 ग्राम में असल में कितना है 1 मोल है, 1 मोल। ओके, सो स्टार्टिंग से थोड़ा सा फिर मैं रिवीजन दे देता हूँ, हल्का हल्का थियोरेटिकल पार्ट। जैसे मान लो कि वी हैव 3 स्टेट, मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर। मैटर मीन्स एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। मैटर एटम से बनता है, मेटल को तोड़ने से पहले मॉलिक्यूल मिलेगा, कोई डायरेक्टली एटम मिलता है, लेकिन कोई कोई मॉलिक्यूल मिलता है, मॉलिक्यूल को तोड़ने से क्या मिलता है, एटम मिलता है। एंड एटम कंटेन 3 पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड वी हैव 3 स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन सॉलिड particles are closely packed. Okay, that's why solid or hard, having definite shape, having definite volume. And when solid is heated, that is converted to liquid. So liquid means intermolecular force of attraction is medium. Medium. Resin is a little bit weakly packed. That's why liquid are soft, have not definite shape. It takes the shape of container where it is kept, but now liquid have definite volume. आप एक कप चाय टी को अब गिलास में रखो या कप में रखो, दोनों में अमाउंट क्या होगा, सेम, वॉल्यूम सेम होगा, बट शेप चेंज हो जाएगा। ग्लास में रखोगे तो इट विल टेक द शेप ऑफ कप ग्लास, एंड इफ इट इज केप्ट इन कप इट विल टेक द शेप ऑफ कप। एंड लास्टली वी हैव gaseous state. Gases means particles are far from each other, very very loosely packed.
That's why gas does not have any definite volume nor have definite shape. Okay, so gases molecule are randomly move here and there. So these are mainly three state of what matter. But we have another additional state that is called plasma state, that is not belong in your syllabus. So sometimes some solid directly converted to gas. That process is called sublimation. And when liquid is heated, it is converted to gas. That is called evaporation. And when gas is cooled down at high pressure, it converted to, again it come back to liquid state. That is called what? Condensation. So this is the process of state changing. We can change the state with the help of condition. So solid to liquid to gas, we have to heat, and pressure should be low. Temperature high, pressure low. This is the condition. अगर गैस से आप लिक्विड में लाना चाहोगे, लिक्विड से सॉलिड में लाना चाहोगे, तो टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, हीट को आपको निकालना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा. सो कंडीशन इज प्रेशर शुड बी हाई. कंप्रेस करने से गैस लिक्विड बनता है. तो दिस कंडीशन यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, देन वी हैव टू नो अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Classification of matter. For example, we have two type of main classification. They are mixture and pure substance. So mixtures means in part means component. We have some component in a container, so but they are not react with each other. ठीक है. अगर एक कंटेनर में जैसे मान लो कि वाटर रख दिया, फिर सॉल्ट रख दिया और शुगर रख दिया, तो वाटर का साथ सॉल्ट का रिएक्शन नहीं होता है. आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन हुआ कि नहीं? रिएक्शन होने से प्रॉपर्टीज चेंज होगा. हमेशा याद रखना, प्रॉपर्टीज चेंज होता है रिएक्शन होने से. मतलब चीनी का टेस्ट चेंज हो जाएगा. तो चीनी मिलाने से पहले पानी में मिलाने के बाद प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है, टेस्ट सेम है. सो रिएक्शन नहीं हुआ है. एंड सॉल्ट वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मिक्सचर. शुगर वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. सो मिल्क इज ए कंप्लीट फूड. मिल्क में क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन से, फैट्स है. तो फैट्स के साथ विटामिन का रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन से कुछ और बन जाएगा. जैसे मिल्क में अगर हम लोग, मिल्क इज ए मिक्सचर, मिल्क में अगर हम लोग खट्टा डाल देंगे, नींबू टेंगा डालेंगे, तो क्या होगा? रिएक्शन होगा एंड कन्वर्टेड टू कर्ड, दही बन जाएगा. और दही का प्रॉपर्टी मिल्क से बहुत अलग है. दही में विटामिन सी मिलता है, मिल्क में विटामिन सी नील होता है. तो मिल्क, हम लोग लगते हैं कि मिल्क और दही सेम प्रोडक्ट होगा. दही तो कार्ड है, वो मिल्क की प्रोडक्ट है, मिल्क से बना हुआ है. तो हम लोग ये लग रहा होगा कि दही है वो मिल्क जैसे वर्क करेगा ना. मिल्क इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? कार्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? मिल्क. सो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. उसके बाद वी हैव टू नो प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस मतलब जो भी रिएक्शन से बनता है. ठीक है, जैसे मान लो कि आप हाइड्रोजन गैस रखा एंड क्लोरीन गैस रख दिया, तो रिएक्शन होगी क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए प्योर सब्सटेंस. इसका मतलब कंटेनर में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा है, कंटेनर में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रखा है. आपको लगाओगे, आप उस कंटेनर में ढूंढो जाएगा हाइड्रोजन गैस, मिलेगा? नहीं मिलेगा. रिएक्शन होगी, कुछ और बन के रखा हुआ है. दैट इज प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस हमेशा केमिकल रिएक्शन से बनता है. ओके, जैसे जिंक का, कॉपर का कंटेनर है, उसमें जिंक सब्जेक्ट रख दिया, तो आपको लगेगा मिक्सचर होगा. नहीं, वो रिएक्शन होगी, कुछ और बन जाएगा. सो कुछ और बन जाना मतलब प्रॉपर्टी चेंज होना, एंड दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. वी हैव टू टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. वन इज एलिमेंट, अदर इज कंपाउंड. एलिमेंट मीन्स मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम. फॉर एग्जाम्पल O3, ओजोन. मिक्सचर क्या होगा? कंपाउंड क्या होगा? मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम. जैसे मीथेन हो गया, CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है. तो जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. जो मॉलिक्यूल सेम एटम से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. तो प्योर सब्सटेंस का दो कैटेगरी है, एलिमेंट एंड व्हाट? कंपाउंड. एंड मिक्सचर का दो कैटेगरी है, वन इज होमोजेनियस, अदर इज हेटेरोजेनियस. Homogeneous means uniformly distributed. For example, sugar water.
चाय बनाते हैं, मीठा तो हर एक जगह सेम होता है. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? होमोजेनियस मिक्सचर. एंड होमोजेनियस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. And heterogeneous means not uniformly distributed. For example, sand water or muddy water. मड्डी मिला दो, मिट्टी मिला दो पानी में, तो मिट्टी कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा. So that is example of heterogeneous mixture. So again we have two category in heterogeneous mixture. One is suspension, another is colloidal. Suspension means particles are big, particle can be seen by naked eye. And colloidal means particle are very small, cannot seen by naked eye. So these are the classification of metals. So we have classification of metals that is completed. Already earlier class was given, but I'm just you are given just a revision because already we have lots of completion of syllabus. So next we have to know a little bit about properties of matter. Two type of properties are there, physical and chemical. Physical means physically, suppose physical property change means temporary property change, which is reversible. Chemical change means permanent change. For example, rusting of iron, जो rust लग जाता है आयरन में, वो रिवर्स नहीं हो सकते, वो परमानेंट है, इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो जो मेनली मैं रिवीजन दे रहा हूँ, उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल मी. लेकिन आप लोग सीखो, यहाँ पे अगर नहीं सीखोगे तो आगे जाके नहीं होगा. एक बार आप अपर क्लासेस में चले जाओगे ना, फिर आपको ना इनबैलेंस हो जाएगा. मैं देखो, मेरा खुद का स्कूल है बोल के मैं इतना जहाँ पे ध्यान देना होता है वहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ. आप लोग थोड़ा सा होने से सीरियसली लो. एक बार अगर मिस मैनेजमेंट हो जाएगा ना, जैसे मान लो आप 11 क्लास में पहुंच के या 10 क्लास में पहुंच के और 9 का ये सब नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आएगा. और बैक में जाकर इतना नहीं बता सकता टीचर, पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है. पॉसिबल होने से भी वेरी डिफिकल्ट होता है. जैसे मैं 11 में जो पढ़ा रहा हूँ, 11 पढ़ाते वक्त 9, 10 का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टीच देम. तब भी बहुत कोशिश करके उठाने की कोशिश करता हूँ. फिर स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, टाइम नहीं इतना मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि 11 का बहुत फास्ट सिलेबस होता है. फिर वापस आके 9, 10 का कॉन्सेप्ट लेना इम्पॉसिबल हो जाता है. इसलिए ट्राई टू हैव फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक नॉलेज. भले मार्क्स थोड़ा कम आए कोई बात नहीं है, बट क्लियर होना जरूरी है और नॉलेज का रियलाइज होना जरूरी है. ओके, फाइन.